السلام علیکم ناظرین، وائس ٹی وی اردو پر براہ راست شام 8 بجے کا اردو خبرنامہ لے کر میں رضوان سلطان آپ کی خدمت میں حاضر۔ اردو خبرنامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ٹی سی آئی میکس سیمنٹ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سابق رکن اسمبلی اور بھاجپا لیڈر فقیر محمد خان نے مبینہ طور پر آج سری نگر کے تلسی باغ علاقے میں سرکاری رہائش گاہ پر مبینہ طور پر زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق فقیر محمد خان نے مبینہ طور پر اپنی رائفل سے ہی خود کو گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کیا۔ فقیر محمد خان کا تعلق شمالی کشمیر کے دور افتادہ اور سرحدی علاقہ گریز سے تھا اور وہ فی الوقت سری نگر میں ہائی سیکیورٹی والے علاقے میں سرکاری رہائش گاہ میں مقیم تھے۔ گزشتہ برس انہوں نے بھاجپا کی ٹکٹ پر گریز نشست سے الیکشن لڑا تھا، تاہم وہ قریب 500 کے ووٹ کے فرق سے ہار گئے۔ ادھر اسمبلی میں خبر پہنچتے ہی اراکین کی طرف سے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے 2 منٹ کی خاموشی ایوان میں کی گئی۔ وہیں عمر عبداللہ نے اس دوران تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ زمین سے جڑے ہوئے لیڈر تھے۔ وہیں نذیر گریزی نے بھی فقیر محمد خان کی موت پر دکھ کا اظہار کیا۔ آپ کا ساتھی ایکس ایم ایل اے گریز فقیر محمد خان صاحب، انہوں نے خودکشی کی ہے گولی کے ذریعے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں اپنے طرف سے ہاؤس کی طرف سے ان کے لواحقین کو تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کرے۔ نے کنفرم کر دیا ہے کہ میں اپنی طرف سے تعزیت کرتا ہوں فیملی کے ساتھ، اور یہ سامنا بڑا دکھ افسوسناک دکھ والا سامنا ہے۔ میں اپنی طرف سے اس فیملی کو تعزیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ لاحقین کو صبر عطا کرے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وقفے سوالات کے دوران بھاجپا رکن اسمبلی ستیش کمار شرما کی طرف سے خالی اسامیوں کو پور کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جموں کشمیر میں خالی اسامیاں جلد از جلد بھری جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے ایوان میں اعداد و شمار دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 برسوں میں 13,000 سے زائد خالی اسامیاں حکومت کی طرف سے JKSSB کو منتقل کی گئی جو نان گیزٹڈ تھیں، ان میں سے 9,000 کو پور کر دیا گیا ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ انہی برسوں میں 2300 سے زائد گیزٹڈ اسامیاں پبلک سروس کمیشن کو منتقل کی گئی، جن میں سے 2100 امیدواروں کی سلیکشن کی گئی ہے۔ وہیں انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زائد 4th کلاس اسامیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ اور اس دوران ستیش کمار شرما نے پوچھا کہ جو مختلف محکموں سے خالی اسامیاں انہیں کب تک پور کیا جائے گا، جس پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خالی اسامیاں بھرتی ایجنسیوں کو جلد منتقل کی جائیں گی اور پور ہوں گی۔ Existing vacancies in various departments of the Union Territory are enclosed in Annexure A. Following steps have been taken to fill these vacancies. 13,466 non-gazetted vacancies stand referred to J&K SSB during the last 2 years. Out of these vacancies referred to the board, 9,351 selections have been made by JK SSB during the last 2 years. 2,390 gazetted vacancies were referred to J&K Public Service Commission during the past 2 years. Out of these referred vacancies, 2,175 selections have been made by JK PSC during the last 2 years. 10,757 Class 4 MTS vacancies have been identified by the various departments which are under scrutiny for concurrence of the Finance Department and shall be referred to the recruiting agencies in due course of time. More than 6,000 vacancies are ready for referral to the recruiting agencies. These vacancies shall be referred to the recruiting agencies shortly for making selections. Sir, मेरा जो मूलतः प्रश्न था वो ये था कि सरकार स्पष्ट करे कि एजुकेशन, हेल्थ, PDD, रेवेन्यू और बैंक जैसे जो मेन इदारे हैं, इनके बारे में मैंने आपसे प्रश्न किया था। मुझे तो ये JKSSB के ऊपर ये सारा डिटेल दी गई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता कि इनके बीच में जो खाली पद पड़े हुए हैं सब, वो भरने का सरकार कब तक प्रयास कर रही है? मेरा प्रश्न मूलतः ये था। अब जैसे बार बार हमने कहा हुआ है ऑनरेबल मेंबर को, हाउस को, हमारे भरने का इरादा है कि जल्द से जल्द कर लेंगे। अगर आपको नंबर चाहिए जितने हमने रेफर किया जो अभी तक भरे हैं वो आपके पास है। اسمبلی میں عارضی ملازمین کی مستقلی کے متعلق جواب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ عارضی ملازمین کی مستقلی کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی کی سربراہی چیف سیکریٹری کر رہے ہیں اور اس حوالے سے باضابطہ ایک آرڈر بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کمیٹی 6 ماہ میں اپنی رپورٹ جمع کرائے گی۔ ان کی ریگولیشن کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تک ڈیلی ویجز کا
का आता है, चौकीदार हैं, लंबरदार हैं, आशा वर्कर हैं, कुक्स हैं, पीएचई, पीटीटी, डेलीवेजर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर, सफाई कर्मचारी, एसपीओ, इनके बारे में कब तक सरकार का प्लान है कि इनको कब तक रेगुलराइज करेंगे, उसका एक पुख्ता प्रमाण यहाँ पे हाउस के अंदर है। इस सिलसिले में एक कमेटी पहले ही बन गई है और चीफ मिनिस्टर के हाउस का बताया कमेटी बन गई है। ऑनरेबल मेंबर ने वही बात उठाई जिसका बार बार यहाँ जिक्र हुआ है। पिछले दिनों इसी हाउस में एक कमेटी तश्कील दी गई चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में। उस कमेटी का फॉर्मल ऑर्डर निकला हुआ है, उन्हें 6 महीने का वक्त दिया गया है। वो इस तमाम रेगुलराइजेशन के सिलसिले को देख के अपने रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट के पास भेज के उनके फिर गौर किया है। इनकी रेगुलराइजेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने असम्बली में पुलिस वेरिफिकेशन और कैदियों का मामला उठाया। रुकन असम्बली ने कहा कि किसी का कोई रिश्तेदार कभी मिलिटेंट रहा हो तो उससे पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट के लिए मुहैया नहीं की जाती। तारेगामी ने कहा कि इस वक्त अगरचे पुलिस वज़ीर आला के इख्तियार में नहीं, ताहम उन्हें ये मामला मरकज़ी सरकार के साथ उठाना चाहिए। वहीं वादी के बाहर दीगर रियासतों में बंद कैदियों का मसला उठाते हुए उन्होंने वज़ीर आला से अपील की कि वो कैदियों का मामला मरकज़ के साथ उठाएं और कैदियों के मामलात का जायज़ा लेने और उन्हें वापस वादी की जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी की। मुझे बताइए, वेरिफिकेशन के नाम पर मेरे पास एक आ गया, उसने कहा मेरा बाप था मिलिटेंट, जो कहा गया वो मर गया। मैं तो उस वक्त छोटा था, 3 साल का, जो मुझे कहा गया। अब मेरा क्या कसूर है? बताइए ना, कहाँ जाए हम? हमारा मुल्क जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और लॉ में सब लोग बराबर है, इंसाफ के दायरे में सब बराबर हैं। तो उन लोगों का क्या कर लें आप जिनको आप पासपोर्ट नहीं देते? वो इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका चचेरा भाई जो है वो किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में उसके खिलाफ एफआईआर है, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुआ, वो साबित भी नहीं हुआ। क्या करे? कुछ तो कहना चाहिए, कोई तो सुने हमारी बात। अभी जेलों में है लोग, चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज में वगैरह में। अरे साहब, कितने साल हो गए कई लोगों को जो इस खित्ते से बाहर जेलों में हैं। क्या हाल है उनका तिहाड़ जेल में? तो मेरा ये गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब के दायरे में है नहीं ये, मैं मानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जब भी आपको मौका मिले हमारा कंसर्न आप पहुंचाइए। जो बरजमान हैं बड़ी कुर्सियों पर, उन तक पहुंचाइए कि ये जो डर्टी न्यूज़ हैं उनके केसेस का एक बार रिव्यू किया जाए और अगर कुछ नहीं मुमकिन है कम से कम उनको लाया जाए जम्मू कश्मीर के जेलों में, ताकि उनके रिश्तेदार उनसे वक्तन फवक्तन मिल सके। अभी जेलों में। वही मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने असम्बली में जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में मुलाजमत में तोसी देने पर शदीद तनकीद की। तारेगामी ने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ मुलाजमत में तोसी देने के लिए नहीं बल्कि तालीमी मेयार को बढ़ावा देने के लिए कायम की गई हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियाँ अब सिर्फ तकारीब के इनेकाद तक महदूद होकर रह गई हैं। तारेगामी ने इस हवाले से वज़ीर आला से अपील की कि इदारों में मुलाजमत में तोसी मामूल नहीं बननी चाहिए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी खास तौर पर जो एजुकेशनल बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज है वगैरह, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशंस मिल रहे हैं बेतहाशा। आई डोंट नो ये कौन सी नई फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। एक तो हुआ एक्सेप्शनली कहीं रिक्वायरमेंट हो, वो हो सकता है, दैट इज ट्रू, लेकिन अब इसको एक रूटीन बनाया जाए, नॉर्मल एक्सरसाइज बनाई जाए, मुझे नहीं लगता है ये मुनासिब है। ये हाउस मैसेज भेज दे कंसर्न क्वार्टर्स को, अनफ इज अनफ। हमारे यूनिवर्सिटीज में एक्सटेंशन के लिए बनी नहीं है, बल्कि वो इसलिए बनी है ताकि तालीम का लेवल बढ़े। जम्मू की तरफ आप नजर डालिए, यहाँ की यूनिवर्सिटी की तरफ, वहाँ के टीचर से बात कर लीजिए कभी आपको टाइम मिले सर। आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी देख लीजिए, ये सारे यूनिवर्सिटीज अब इवेंट ओरिएंटेड मरकज बन गए हैं, नॉट फॉर एजुकेशन।
तालीमी मेयार बड़ा नहीं है, तो इस वजह से मेरी गुजारिश मुख्तसर तौर ये है कि एक्सटेंशंस चाहे वो ऑफिसर्स का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में बाकी लोग काम करने वाले हों, इनको एक्सेप्शनली देखा जाना चाहिए, ये एक नॉर्म नहीं बनना चाहिए। जो इस वक्त जनरल महकमा सेरीकल्चर की तरफ से सेंट्रल सिलिक बोर्ड्स रीजनल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन के इश्तराक के साथ एक रोज़ा रेशम कृषि मेले का इनकाद डाक बंगला नौशहरा राजौरी में किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज़ अहमद भट्ट ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। वहीं इस प्रोग्राम का इफ्तिताह भी उन्होंने ही किया। इस मौके पर 500 से ज़ायद रेशम के कीड़े पालने वाले किसानों ने मेले में शिरकत की, जहां उन्हें इस सन्नत की नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान एजाज़ अहमद ने किसानों को तकनीकी गाइडेंस, तरबियत और स्किल डेवलपमेंट फराहम करने का अदा किया। सिलिक बोर्ड का इसमें भरपूर इश्तिराक होता है। यहाँ भी सेंट्रल सिलिक बोर्ड का इश्तिराक था। यहाँ आप खुद देख रहे हैं डॉक्टर सरदार सिंह साहब जो नॉर्थ इंडिया के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी हैं, जिनका हेड क्वार्टर पामपुर में भी, वो भी आज नौशहरा में खुद हैं। और दूसरे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट अफसर वगैरह सब यहाँ हैं। तो कोशिश हमारी रहती है कि जो हमारी स्कीमें हैं सरकार की, उनका एक तो अवेयरनेस हो जाए लोगों में, और अगर इनको कोई दिक्कत है तो वो हमसे शेयर करें। आपने यहाँ भी देखा होगा जो भी कोई इशू थे वो हमने सुने, और अप्रिशिएट भी किया जाता है। इनको थोड़ा सा यहाँ फेलिसिटेशन दी जाती है, कोई मोमेंटो दिया जाता है, कोई सर्टिफिकेट दी जाती है जिन्होंने अच्छा काम, ताकि एनकरेज हो जाए और लोग और जुड़ जाएं इसमें। तो हमारी ये चाहत है कि जो भी इसमें कोई कठिनाई है, कोई बोटलनेक है, हम ज़रूर उसको देखेंगे। हमने अपने नंबर भी इनके साथ शेयर किए, ताकि इनको अगर कोई दिक्कत आती है ऑपरेशंस में, कोई बीमारी लगती है, कोई इनिशियल स्टेज में कोई दिक्कत आती है, तो ज़रूर टेक्निकल टीम जो है CSB की हमारी, वो ज़रूर इनके पास आती रहेगी, विज़िट करती रहेगी, ताकि हमारा क्वालिटी कोकून हो और इसका अच्छा रेट बने। और हमारा जो किसान है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग करके न सिर्फ हमारा सेरीकल्चर, न सिर्फ कोकून, बल्कि दूसरी फार्मिंग भी करके ये 10 रुपये कमाए और अपने घर का अच्छा सा उसका रोजगार। सबको मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वस्ती ज़िला बडगाम के डूनीवारी चाडूरा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से खेल के मैदान के लिए ज़मीन की हदबंदी का अमल शुरू किया गया। इस अमल की निगरानी नायब तहसीलदार मुजफ्फर हुसैन की क़यादत में की गई। नायब तहसीलदार मुजफ्फर हुसैन ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम की हिदायत पर खेल के मैदान की तामीर के लिए इसकी हदबंदी का अमल शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अमल को मुकम्मल करने में कुछ दिन लगेंगे और तकरीबन 50 से 60 कनाल अराजी पर यह मुश्तमिल है, जो कि काश्तराई लैंड में थी। लैंड भी इसमें शामिल थी। इस एरिया के जो बाशिंदा हैं उन्होंने जब मुझे लगता है हमारे हायर अथॉरिटी से अप्रोच की है कि यहाँ कुछ प्ले ग्राउंड वगैरह बच्चों के लिए बनाना है, तो उसके रिलेटेड एक DC ऑफिस से एक आर्डर निकला था कि फॉर डिमार्केशन ऑफ लैंड। सो आज हमने एक अपनी टीम जो है उनको साथ लेके यहाँ पहुँचे, तो हमने डिमार्केशन जो स्टार्ट की। लेकिन एक डिमार्केशन का एक ज़ाब्ता होता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर खसरा नंबर की डिमार्केशन करनी होती है तो उसके लिए एक बंदोबस्ती पॉइंट कायम करना होता है, ताकि किसी और ज़मींदार का रकबा जो है वो उसमें ना आए। तो इस सिलसिले में हमने जब देखा तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा नंबर खसरा है। जो यहाँ घासचराई का नंबर है वो लगभग 50 से 60 कनाल के बीच में है। तो इस डिमार्केशन करने के लिए हमें एक मुझे लगता है 3-4 दिन की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल जो हमारी जो टीम है वो एक बंदोबस्ती पॉइंट कायम कर रही है, तो इंशाल्लाह जितना जल्दी होगा हम इसको ये डिमार्केट। देखिए, प्ले ग्राउंड के लिए फ़िलहाल मुझे नहीं लगता है कि कोई ऊपर से कोई प्रपोजल आया कि हमें कितना 20 कनाल चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए। फिलहाल हमने देखना है कि हमारी जो घासचराई ज़मीन है वो कहाँ कहाँ तक है, अवेलेबल कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उनको देखना है कि कितना उसकी डायमेंशंस कितनी है ग्राउंड की, उसके तब उनको दे देंगे। देखो, जो इससे पहले जो पार्टीज़ हैं उन्होंने हमें एक स्टे ऑर्डर भी यहाँ दिखाया, वो लगभग 1 साल पुराना है। हम वो भी कोर्ट से जो है रिज्यू करेंगे, देखेंगे भाई उस केस का क्या स्टेटस है, तो उसके बाद ही हम उसमें जो फाइनल जो है वो करेंगे। देखिए, अगर तो स्टेट लैंड या घासचराई ज़मीन को देखा जाए तो यहाँ काफ़ी सारे खसरा नंबर हैं जो उस घासचराई के जद में आते हैं। तो उन सारे नंबरात खसरा को जो है डिमार्केट करना कोई एक दिन का काम नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम हमें लगेगा और मैन पावर की भी काफ़ी हमें वहाँ ज़रूरत है। ज़िला कुपवाड़ा के नतनुसा इलाके में आज SDRF कुपवाड़ा ने कफीला फाउंडेशन के इश्तराक से नागहानी आफात से निमटने के लिए एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में
स्कूली बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जहाँ उन्हें नागहानी आफात से निमटने के हवाले से तरबियत फराहम की गई। SDRF का ये मकसद है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मकसद, ये हर इंसान को, हर बच्चे को, हर फ़र्द को पता होना चाहिए डिज़ास्टर के दौरान हम किसी की जान को कैसे बचाते हैं। और सबसे पहले ये यहाँ पे अवेयरनेस में पता चलता है कि फ़र्स्ट एड कैसे देना है, क्योंकि ये ज़्यादातर सोचते हैं फ़र्स्ट एड डॉक्टर ही देंगे ना, हाल ही हाथ हम किसी की मदद कर सकते हैं किसी भी डिज़ास्टर में। डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हमें महीने में 8 प्रोग्राम देने और 4 मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करनी है हर स्कूल में, और हमारी कोशिश है कि हर स्कूल में, हर गाँव में, हर इलाके में हम लोगों को अवेयर करेंगे डिज़ास्टर के दौरान अपनी मदद कैसे खुद कर सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चों में सीखने का भी शौक़ अच्छा है और बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया, खास करके उस्तादों ने भी बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट किया और यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम था। ये काफिला फाउंडेशन इसको अरेंज किया था और इसमें मेंबर्स फ्रॉम द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थे। अच्छा प्रोग्राम था, फ्रेंडली बच्चों को सिखाया गया, अच्छी लर्निंग मिली बच्चों को, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद रहा प्रोग्राम। हम चाहते हैं कि हमारे इस वैली में ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें बच्चे इस हद तक ट्रेंड करने हैं कि ताकि वो घर वगैरह के। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जहाँ तक हमारी NEP 2020 का ताल्लुक है, इसमें एक वास्ट प्रोग्राम है कि एक हमारा बच्चा जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसे प्रोग्राम। नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।